In India, people are not so literate. I would say not so literated. They are so illiterate kind of people कि उन्हें समझ नहीं आता है, especially those who belong to the rustic areas. हमें कहाँ दिखाना चाहिए, like what problem we are facing, and according to that, which doctor we should go to, for the consultation. This is a major problem. A very warm welcome to everyone. We were doing word power made easy. This is the session number 4 and 5. We have covered it like collectively, and so we will start with the session number 4, and in the meantime we will do the session number 5 also. So this is like a cumulative session of 4 and 5 both. Okay, we are done with 1, 2 and 3. If you have not seen that videos, please go to that videos first, then come back to the session number 4. In the previous class we have discussed type of personalities. In this class we'll discuss type of doctors. In India, people are not so literate. I would say not so literated. They are so illiterate kind of people कि उन्हें समझ नहीं आता है, especially those who belong to the rustic areas. हमें कहाँ दिखाना चाहिए, like what problem we are facing, and according to that, which doctor we should go to, for the consultation. This is a major problem that मैंने देखा है mostly people that faces in their life. So यहाँ पर you can get a generic idea. You will get a generic idea about some common things. Let's suppose the first word is gynecologist. Now I have told you LOGY is a root word. मैं वापस बता रही हूँ आप लोगों को because I want कि ये सारे words आपके टिप पे होने चाहिए. This is the basic of vocabulary. LOGY. Logy is a root word for study. Okay? जब भी हम किसी study की बात करते हैं, it comes with logy. जैसे पैलिएंटोलॉजी, इकोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है. अब वन हु स्टडीज दिस स्टडी, कोई भी इंसान जो इस स्टडी को पढ़ता है, कोई भी इंसान जो इस लॉजी को पढ़ता है, दैट इज लॉजिस्ट. वो कौन बन जाता है? LOGIST. इफ आई से हु इज गायनेकोलॉजिस्ट, सो गाइन इज अ रूट वर्ड फॉर विमेन. ठीक है, पहले भी बताया है, वापस बता रही हूँ. गाइन इज अ रूट वर्ड फॉर विमेन. सो वन हु डील्स विद the reproductive organs of women. ये महिलाओं के डॉक्टर नहीं होते. Top word gynecologist are the males. It's not like कि women's doctor. Women's doctor क्या होता है? अगर women के heart में problem है तो क्या आप gynecologist के पास जाओगे? Of course no. Gynecologist deals with the reproductive organs of the body of women. So one who studies gynecology is known as gynecologist. अब who is gynecologist? One who deals with the reproductive organ of women's body. देख लीजिए इसको. One who deals with reproductive organ of women's body. That's the gynecologist. ठीक है. Second is obstetrician. आपने देखा होगा, अगर आप थोड़े भी observer type of अगर आपका behavior है, if you are very keen to observing the things, तो कई बार ऐसे लिखा होता है, जैसे लिखा है डॉक्टर नीलम. Let's suppose ऐसे लिखा है डॉक्टर नीलम और नीचे लिखा होगा गाइन प्लस OBS डॉट. ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट भी है और ऑब्स्टेट्रिशियन भी है. अब ऑब्स्टेट्रिशियंस होते क्या है बेटा? व्हाट एग्जैक्टली ऑब्स्टेट्रिशियंस डू? सो दे डील विद मैटर्निटी. मैटर्निटी, मातृत्व का जो सुख है, मैटर्निटी, माँ बनने का जो एहसास है. ठीक है, नॉट एवरी गायनेकोलॉजिस्ट इज एन ऑब्स्टेट्रिशियन, बट एवरी ऑब्स्टेट्रिशियन इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है, तो one who helps you with maternity and the childbirth, then that is obstetrician. ठीक है, ये आपको चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं, डिलीवरी एंड ऑल करना. साथ में दे हैव अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ फॉर द पीडियाट्रिशियन का भी कुछ कुछ इनको नॉलेज होता है. इससे वो जो न्यू बेबी है, जो इन्फेंट है, उसको चेक कर पाते हैं ये लोग कि हाँ वेदर द चाइल्ड इज हेल्दी या कोई इशू है. तो ऑब्स्टेट्रिशियंस आर गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो, और 10-20% वो पीडियाट्रिशियन भी होते हैं. सो एवरी गायनेकोलॉजिस्ट इज नॉट मैंडेटरली शुड बी एन ऑब्स्टेट्रिशियन, बट एवरी ऑब्स्टेट्रिशियन इज डेफिनेटली अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि दे हैव टू डील विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ विमेन बॉडी. थर्ड इज पीडियाट्रिशियन. पीडियाश्योर सबने देखा है, टीवी में ऐड आता है, उसमें बच्चों की ग्रोथ के बारे में बात की जाती है. तो पीडिया में जो ये PADI है, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन. करेक्ट? इन्फेंट्स. 0 to 12 इज अ चिल्ड्रन. 0 to 12 जो एज होती है बेटा, इसमें हम बच्चों को बच्चा मानते हैं. उसके बाद टीन एज स्टार्ट हो जाती है, 13 to 19.
सो जितने भी पीडियाट्रिशियंस है, अगर आप 12 साल के हैं, आपको फीवर है, आपको टाइफॉइड है, लेट्स से आपको कुछ भी है, तो यू आर गोइंग टू विजिट अ पीडियाट्रिशियन. बट इफ यू आर ऑफ 14 ईयर ऑफ एज एंड यू हैव सर्टेन इशू, यू विल डायरेक्टली गो टू द फिजिशियन. ठीक है, जो बड़े बच्चों के भी डॉक्टर्स होते हैं और टीन एज के भी डॉक्टर होते हैं. तो पीडियाट्रिशियन क्या होता है? वन हु लुक्स आफ्टर मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, कई बार काउंसलिंग भी करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. अब बहुत से माओ की ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता, तो वो भागती हैं डॉक्टर्स के पास. तो कौन सा डॉक्टर के पास जाती है? पीडियाट्रिशियन. ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट. आपने देखा होगा एक इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस डॉक्टर है, वो बच्चों को ऐसे मजाक मजाक में इंजेक्ट कर देते हैं, गाना सुना सुना के इंजेक्ट कर देते हैं. तो वो क्या है? ही इज पीडियाट्रिशियन. ठीक है. डर्मा इज फॉर स्किन. डर्म मैंने पहले बताया है, ये एक रूट वर्ड है विच मीन्स स्किन. सो हु इज डर्मेटोलॉजिस्ट? वन हु डील्स विद स्किन, हेयर एंड नेल्स. 99% अबाउट स्किन ऑल्सो, बट उसमें हेयर भी इंक्लूडेड है. ठीक है. सो दे ट्रीट विद स्किन प्लस हेयर. कहीं कहीं पर नेल्स भी लिखा होता है. नेल के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, नेल आर्ट नहीं करते ये. ठीक है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिक. अब डर्म आया है तो मतलब बात स्किन की हो रही है, करेक्ट. और हाइपो है मतलब समथिंग इज अंडर, तो अंडर द स्किन इज हाइपोडर्मिक. आई विल शेयर वन स्टोरी विद यू गाइज. When I was, around 4 years back, it was the season of monsoon, I guess. हाँ, कुछ जून जुलाई टाइप का महीना था. हाँ, it was of July, early July, like 2, 3, 4 टाइप ऐसा कुछ था, initial days of July. तो I got certain poxes on my skin, जैसे इधर था या कुछ hands में थे, and they were like full of water, वैसे watery सा था मतलब कुछ. तो वो तो I was enjoying कि अरे वाह ये क्या, इसको चलो फोड़ के देखते हैं. तो I have seen कि it was like some watery kind of substance just ooze out. So then I suddenly, within the span of 2-3 hours, I got certain kind of poxes in my hair also, ऐसे scalp के आसपास. So I was a bit worried कि ये क्या हो गया. So I went to my father is really active, I would say, person. तो आई कॉल्ड हिम कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है. देन ही सेड ओके गो टू द नियर बाय, जो भी जो भी आपके पास अभी अवेलेबल 1-2 किलोमीटर की रेंज में डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उसमें आप जाओ एंड जस्ट आस्क देम व्हाट्स हैपनिंग विद यू. सो व्हेन आई वेंट देयर ही जस्ट लुक्ड इनटू माय आईज एंड ही सेड कि ओ माय गॉड यू गॉट द चिकन पॉक्स. तो मुझे कभी लाइफ में नहीं हुआ था. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर कि ओ अब तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया है, आई विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ द प्लेसेस. Whatever the myths I have heard about it, okay, I'll be not be able to eat my favorite food, especially burgers and all. Then I cried like anything over there, and he called my parents with my mobile only कि this is your daughter and she's extremely crying. When she got to know कि she got chicken pox, so my mother and my father came from my hometown to Lucknow to pick me up. एंड दे जस्ट काउंसल्ड टू द होल रास्ता, पूरे रास्ते मुझे समझाते गए कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इट्स परफेक्टली गुड, योर स्किन विल बी ऑल राइट, कुछ नहीं होगा. मतलब आई एम जस्ट, अभी मैं देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है. एंड इट वॉज लाइक क्वाइट टफ, बट माई पेरेंट्स आर सो कम्फर्टेबल एंड सो कोजी, सो दे आर फुल ऑफ लव कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आई एम जस्ट इन अ क्वारंटाइन काइंड ऑफ शेल. It was all good and yeah, so that's how it is. So hypodermic is what? अब जितने चिकन पॉक्स के दाने आपको ऊपर दिख रहे होते हैं ना, आपके हेड पे, आपकी टंग पे, आपकी ईयर पे, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जितने पॉक्सेस आपको विजिबल हैं अपनी बॉडी पे, अपर बॉडी पे, पैरों में, कहीं पर भी, वेयर एवर द पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ पर भी पॉक्सेस हैं, इतने ही पॉक्सेस आपको इंटरनल ऑर्गन्स में भी हैं. अब आई डोंट नो ही वॉज राइट और मे बी रॉन्ग, मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया आज तक, बट अब मैं करूंगी क्लास के बाद. बट ही मेंशन्ड मी कि वट एवर पॉक्सेस यू आर लुकिंग एट योर बॉडी, एग्जैक्टली दे आर ऑल्सो अंडर द स्किन ऑल्सो, दैट इज हाइपोडर्मिक. यही पॉक्सेस आपके स्किन के अंदर भी हैं. दैट्स वाई यू हैव टू ईट नॉट वेरी हॉट फूड, नॉट जंक, वेरी सिंपल फूड विद लेस सॉल्ट, जिससे आपकी बॉडी को इरिटेशन ना हो, आप जल्दी हील हो सको. तो दैट वॉज द साइंस ही टोल्ड मी कि इसीलिए लोगों को जो है उस टाइम पे ऐसा खाना खिलाया जाता है कि इट्स नॉट सो डेकोरेटिव और मे बी द टेम्पटिंग, बट या इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर योर स्किन, क्योंकि वो पॉक्सेस आपके अंडर द स्किन भी होते हैं. तो एनीथिंग इज हाइपो, दैट इज मतलब दैट इज अंडर. जैसे लोग बोलते हैं ना हाइपोथायरॉइडिज्म,
तो दैट इज अंडर सीक्रेशन, जितना थायराइड चाहिए उतना नहीं है आपको, कम सीक्रेट हो रहा है, तो इट्स हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, तो हाइपो मीन्स लेस, अंडर. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब होता है आउटर स्किन. डर्मी, अगेन डर्म आया है तो मतलब स्किन की बात हो रही है, स्किन, एंड दिस इज आउटर. एपिडर्मिक सुना होगा आपने, है ना, तो दैट्स हाउ इट इज. टैक्सीडर्मी इज इंपॉर्टेंट. डर्मी तो अभी आप समझ गए, दैट इज स्किन. टैक्सी क्यों यूज हो रहा है? इट डजंट मेक्स एनी सेंस रिगार्डिंग टैक्सी और ऑटो. टैक्सी इज यूज्ड फॉर एनिमल्स. सी, you wear a lot of leather jackets, leather boots, leather, you keep leather wallets. तो जो ये जो animal based leather होता है, I'm not talking about the vegan leather, I'm talking about the leather that comes from the animal's skin. तो that is how taxidermy. तो आप कह सकते हो कि taxidermy is a art, it is a art in which crafts are made from animal skin, from animal's skin. अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ. पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ केराटिन एंड ऑल. ठीक है, केराटिन, आई गेस जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, दे नो व्हाट केराटिन सेंस टू देम. केराटिन हमारी बॉडी में बनता है ऑल्दो, बट देयर इज एन एनिमल दैट इज नोन एज एंट ईटर. ये ना उधर उड़ीसा साइड जो गहीर माथा जो अपना है एरिया, उधर वो आते हैं फॉर मेटिंग पर्पस. ठीक है, तो जो बहुत सारे जो आई वुड से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पोच करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें मार देते हैं और वो उसकी स्किन को निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी स्किन में केराटिन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बेच देते हैं. तो दिस इज़ ऑल बैंड, इट्स नॉट गुड, और इसको गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस के साथ कवर करती है. बट स्टिल, just because people are so fond of crafts that are made from animals' skin. I went one of my friend and she carried a bag which was made by snake की जो snake का जो leather बनता है, snake की skin का, and I just appreciated. 10 मिनट पहले मैंने उसकी तारीफ करी कि यार this is so fab, कहाँ से लेकर के आई है वो. When she told me कि it's made from animal skin or especially snake, oh my god, it was so horrible experience for me. But people are fond of crafts that are made from animal skin. ठीक है, उन्हें pure leather का jacket, boots they need. And so who are taxidermists? They are the artists. They are the artists because they make crafts from animal skin. और ये एक आर्ट है जहाँ पर बनाया जाता है, जो बनाते हैं वो टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं. नेक्स्ट वर्ड पेकाइडम. पेकाइडम में फिर से डर्म आया है, मतलब यहाँ भी स्किन की बात हो रही है. पेकाइडम मतलब होता है थिक. तो पेकाइडम आप उस सभी को बोल सकते हो हु हैज थिक स्किन. थिक स्किन. अभी अराउंड 21 जनवरी अराउंड आई वेंट टू उदयपुर. एंड उदयपुर में जब आप हाईवे पे जाते हो फ्रॉम उदयपुर टू श्रीनाथ जी, वहाँ रास्ते में हाईवे पड़ता है. उस हाईवे में दे हैव मेंशन्ड एवरीवेयर कि कोई भी आपको एनिमल ऐसे रोड पे दिख सकता है. सो बी कॉशियस, बी इन द स्पीड दैट कुछ भी होता है तो यू कैन मेंटेन इट. ओके, तो देयर वाज अ गाय, ही वाज जस्ट गोइंग अहेड ऑफ अस एंड ही वाज फ्रॉम सम बाइक लाइक अपाचे और समथिंग लाइक दैट. अचानक से एक वाइल्ड पिग आता है. वाइल्ड पिग वाज लाइक छोटा सा बेबी था वो, बहुत ज़्यादा उसकी हाइट नहीं थी, बट इट वॉज फुल ब्राउन डार्क कलर्ड और लग रहा था कि वो जंगल का है लिटरली. वो उसकी बाइक को हिट करता है एंड द गाय जस्ट फेल आउट, फेल ऑन द रोड. बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, बट द पिग वॉज नॉर्मल. वो उसको हिट करता मस्त दौड़ता हुआ जाता, उसको कोई चोट नहीं आई होती है. उसकी स्किन कैसी है? थिक स्किन है. वो भी रोड पे गिरा बट उसे कोई हार्म नहीं हुआ. वो उठा मस्त और चला गया वापस. मैंने उसको पूरा ऑब्जर्व कि कहीं इसको ब्लड आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, बट इट वॉज नथिंग. वो चुपचाप चला गया वापस अपने वो जंगल वाले एरिया में. बट द गाय वॉज नॉट पेकाइडम ना. उसकी तो स्किन एक ह्यूमन स्किन है विच इज़ लाइक वेरी सपल एंड सॉफ्ट. उसे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. लेकिन पेकाइडम थिक स्किन एनिमल, थिक स्किन एनिमल, उसे हिट हुआ, मे बी उसे इंटरनल चोट आई हो, बट देन द पिग वॉज ऑल राइट. सो पेकाइडम का मतलब होता है मोटी चमड़ी या थिक स्किन. डर्माइटिस, ये TITITS जहाँ पर भी लगता है लगभग उसका जो वो मीनिंग होता है वो इन्फेक्शन से होता है, इन्फ्लेमेशन. आज की डेट में इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं. सो स्किन का जो इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होती है, रेडनेस हो गई, रेड पैचेस हो गए, इचिंग हो गई, ये सारा पार्ट किसका है? डर्माइटिस का है. आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइज. नाउ मूविंग फर्दर. ओके, वापस से हम डॉक्टर्स पे आ गए. वापस से यहाँ पर देखेंगे हम लोग.
अब यहाँ पर लिखा है ऑर्थोपेडिस। ऑर्थो मतलब आपको पता है बोन्स रिलेटेड, लेकिन क्या है ये, इसका रूट वर्ड क्या है, स्ट्रेट, ठीक है। अब ऑर्थो कहीं पर भी लगेगा तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर बोन्स की बात हो रही है, ऑर्थोपेडिस्ट है क्योंकि, तो स्ट्रेटनिंग की बात हो रही है कि वो बोन्स को स्ट्रेट करते हैं। तो वन हु डील्स विद आवर स्केलेटन, वन हु डील्स विद आवर स्केलेटन, हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं सब स्केलेटन सिस्टम में कवर हो जाती हैं। तो पूरे स्केलेटन सिस्टम की कहीं पर भी कोई बोन अगर ब्रेक होती है, स्ट्रेटन करनी है, कुछ भी है, तो वी विल गो टू अप्रोच ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया इज अ रूट वर्ड फॉर हार्ट। अब अगर आपको हार्ट या फिर हार्ट से रिलेटेड, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन दिल टूटने का इलाज इनके पास भी नहीं है, ठीक है। हार्ट इज अ बॉडी ऑर्गन, लेकिन आपने उसे इमोशन बना दिया है, तो कार्डियोलॉजिस्ट किसका इलाज करते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन का, विच इज हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन यू ऑल नो, इट्स अ सेल, न्यूरॉन सेल आपने सुना होगा, नर्व्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में से एक ये भी है। तो वन हु डील्स विद आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को ट्रीट करते हैं। अगर आपके L1 L4 में प्रॉब्लम होती है, आपके कहीं ब्रेन में कहीं चोट आती है, कोई हैमरेज होता है, कोई सर्जरी होनी है, कोई ट्यूमर हो गया है, सो यू विल गो टू न्यूरोलॉजिस्ट। या फिर आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ों को ट्रीट करते हैं, या माइग्रेन का इशू है तो यू विल गो टू विजिट न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस दो बीमारियां होती हैं, दोनों विजिबल हैं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अब न्यूराइटिस तो आप समझ गए होंगे, डर्माइटिस पढ़ा है तो न्यूराइटिस आप समझ गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं कुछ नर्व के इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आप कह सकते हो इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स काइंड ऑफ, ठीक है। बट व्हाट इज न्यूरोसिस, इट्स अ पेन, आई एम गिविंग यू अ हिंट दैट इट्स अ पेन, बट कहाँ, यस, पीपल हु सफर फ्रॉम एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, मे बी कुछ डिस्कम्फर्ट जब उन्हें फील होता है, तो दैट पर्टिकुलर यू नो द सम ऑफ ऑल द सिम्टम इज नोन एज न्यूरोसिस। तो इट्स अ लाइक लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट कह सकते हो आप, दैट इज न्यूरोसिस। न्यूरोसिस एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा आई वुड से यू नो कंडीशन है जहाँ पर यू वरी अलॉट, आपको हर छोटी छोटी बात की चिंता होती है, ठीक है, आप बहुत टेंशन लेते हो, आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, यू वरी अलॉट, यू टेक पेन्स अलॉट कि अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, यू नो, इट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर, इट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर। ये जो डिस्कम्फर्ट है ये होता है न्यूरोसिस। न्यूराइटिस तो इन्फ्लेमेशन में आ जाता है, बट ये डिस्कम्फर्ट न्यूरोसिस है। सो व्हाट इज साइकोसिस, एनी आइडिया। साइकोसिस में आपको पता है इट्स ऑल अबाउट माइंड, साइकी इसको कहते हैं। साइकी इज अ रूट वर्ड फॉर स्पिरिट, सोल एंड माइंड, ठीक है, जिसको आप मन कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। अब साइकोसिस क्या है, साइकोसिस में ना आप कभी कभी खुद को भूल जाते हो, पार्शली, होली मे बी, ठीक है, अजीब तरीके से आप बिहेव करते हो, दैट इज ऑल साइकोसिस। ओके, आप कह सकते हो कि इट इज़ लाइक यू नो यू बिलीव इन लॉट ऑफ डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, जो इस टाइप का बिहेवियर है, दैट इज ऑल साइकोसिस। इट्स अ मेंटल या आई वुड से द इमोशनल डिस्कम्फर्ट कह सकते हो आप, यस, इमोशनल डिस्कम्फर्ट इज करेक्ट। यहाँ पर आप बहुत सारे हेलुसिनेशंस में जीते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अजीब डिल्यूजन्स में बिलीव करते हो, यू रिमेन ऑन वूल गैदरिंग, ठीक है, यू ऑलवेज कीप ऑन डे ड्रीमिंग, अजीब है, मतलब अपने मन में ही ये जीते रहते हैं, इनके मन में ही बहुत एक अलग सी दुनिया बस जाती है, जिस दुनिया को ये मानते हैं कि एग्जिस्ट करती है। ओके, जस्ट लाइक वी हैव वॉच दैट सीन इन भूल भुलैया 1, अवनी हैज़ दिस प्रॉब्लम जहाँ पर उसको अलग सा इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है स्टोरी सुनने के बाद। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बीमारी मुझे भी है, बट समटाइम्स आई एम सो मच इनटू इमोशंस कि लेट्स सपोज इफ आई एम वॉचिंग अ मूवी और एनीथिंग, और उसमें किसी कैरेक्टर को, अभी मैं लास्ट टाइम ना मंडला मर्डर्स देख रही थी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पर वो जो यस्त बनाना, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ये सब जो दिखा रहे थे मूवी में, एक सीरीज ऑफ मर्डर, तो आई वॉज सो एंशियस एट द सेम टाइम एंड सो मच क्यूरेटिव एंड यू नो
आई वुड से क्यूरियस टू नो कि डज इट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड ऑल्सो. जिसने ये नॉवल लिखी है मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया. तो ये ऐसा नहीं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस, आई हैव इमोशनल डिस्कम्फर्ट. आई ऑलवेज हैव दिस, यू नो, मैं बचपन में भी सोचती थी कि हाउ पीपल गेट दीज काइंड ऑफ आइडियाज. मतलब जैसे कि कुछ अलग करने का, कुछ अलग बना लेने का, कुछ अलग सोच लेने का, इनको आइडिया कहाँ से आता है कि चलो बल्ब बनाते हैं, तो ये बल्ब का आइडिया कहाँ से आया उन्हें, ठीक है. या कुछ भी जो बहुत अलग है, ठीक है, जो बहुत अजीब कह सकते हो या बहुत नया है, उसके बारे में लोग पहली बार में कैसे सोच लेते हैं. उन्हें कैसे पता होता है कि उन्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए था उतने साल पहले, तो आज वो करोड़पति हो जाएंगे. यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई ऑलवेज सीक कि ये कहाँ से आती है. हाउ यू आर सो मच अलाइन टू द फ्यूचर कि ये आगे आने में काम आने वाला है. तो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, मेक्स यू मोर क्यूरियस, more keen to know the world around you. But psychosis is a whole emotional discomfort. एक अलग दुनिया बसा लेते हो आप अपने मन के अंदर, और उसी दुनिया को आप सच मानते हो कि ये है, और वही है आपके लिए. आप रियल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं. You remain in your that emotional discomfort which makes you more comfortable than the real world. Okay? कुछ लोगों को आपने देखा होगा, they always believe in lying. मतलब उन्हें झूठ बोलने की इतनी आदत है कि हमारे घर में तो ये भी है, वो भी है, कुछ भी नहीं है, बट वो इतना प्यारा झूठ बोलते हैं, इतना क्रिएटिव झूठ बोलते हैं कि यू विल जस्ट फॉल इन द ट्रैप कि इतना सफाई से कोई झूठ कैसे बोल सकता है. तो वो झूठ नहीं है उनके लिए, वो उनके लिए रियल वर्ल्ड है. वो मानते हैं कि उनके पास सब कुछ है. आप समझ रहे हो मेरी बात? that's how, you know, the mental awareness campaigns are so much important for, you know, India. भारत में 10 में से 7 लोग अंदर डिप्रेशन जी रहे हैं आज भी. एक रिसर्च कहती है इट्स लाइक 7 out of 10 people are in depression. Getting my point? तो ये बात बहुत बड़ी है. इवन आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स, एक दिन में पढ़ूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा. दैट्स नॉट बिलीफ, दैट्स हाउ दे लिव देयर लाइफ. इट्स देयर यू नो चॉइस कि उन्हें वैसे ही जीना पसंद आ गया है. सो न्यूरोसिस इज अ मेंटल कंडीशन जहाँ पर यू गेट लॉट ऑफ फियर एंड ओवर थिंकिंग, सो मच वरी, सो मच फियर ऑफ एवरीथिंग. साइकोसिस है इमोशनल डिस्कम्फर्ट जहाँ पर आप अपनी दुनिया एक अलग बनाते हो, फुल ऑफ हेलुसिनेशंस, फुल ऑफ डिल्यूजन्स, फुल ऑफ इल्यूजन्स. अब साइकोटिक क्या है? साइकोटिक भी साइकी से बना है, मतलब माइंड की बात है. कुछ कुछ अगेन रिलेटेड टू माइंड. बहुत से लोगों को लगता है ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ है. ब्रेन एंड माइंड इज सेम बट नॉट. ब्रेन इज अ बॉडी ऑर्गन. जैसे दिल है, लिवर है, किडनीज है, वैसे ब्रेन भी हमारा क्या है? बॉडी ऑर्गन है. माइंड इज आर साइकी, हमारा मन. ठान ले तो जीत, मान ले तो हार. ये सब कहाँ से आता है? सब अंदर का खेल है, सब माइंड का गेम है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. दैट्स सो सिंपल. आई गेस एवरी वन ऑफ इज अवेयर ऑफ दिस वर्ड व्हाट एग्जैक्टली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आर. अब लॉजिस्ट आया है मतलब इट समथिंग रिलेटेड टू लॉजी. So firstly we'll talk about the ophthalmology, one who studies about the, you know, the study of eyes, vision, है ना, that is ophthalmology. And one who studies it is known as ophthalmologist. So they deal with eyes. इसमें वो vision से भी matter, vision भी कह सकते हो आप, ailments भी कह सकते हो, छोटी मोटी तकलीफ जो भी होती है ये सब ophthalmologist clear कर लेते हैं. Opticians they deal with lenses, जहाँ से अपना spectacles बनवाते हो. वो सब कौन होते हैं? ऑप्टिकल्स ही तो होते हैं. ओके. दे डील्स विद लेंस, जिससे जो दैट हेल्प्स यू टू मेक योर विजन बेटर. ओके. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. ऑक्यूलस. ऑक्यूलर इज अगेन रिलेटेड टू योर आईज एंड योर विजन. ठीक है. तो फर्स्ट इज मोनोकल. मोनोकल का मतलब होता है, मोनो मतलब वन, ऑकल मतलब अगेन विजन. तो इट इज लाइक सिंगल आई लेंस, एक आंख का चश्मा, जैसे हैरी पॉटर में लगाता है ना. तो मोनो मतलब वन, तो आप सिंगल कह सकते हो, सिंगल आई लेंस. बाइनोकुलर्स मेक्स यू हेल्प टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. ऑक्यूलर अगेन इज रिलेटेड टू आईज विजन. व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी इज अ स्टाइल ऑफ टीचिंग. दोज हु यू नो डू बीएड एंड बीटीसी टाइप ऑफ कोर्सेज, तो दे जस्ट रीड पेडागोजिकल स्किल्स, जहाँ पर it's a skill that defines your teaching, skills. Okay. Especially it deals with academics. ठीक है. बच्चों को academically कैसे strong किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये सारे skills का हम बात करते हैं pedagogy में. We'll move further. Okay.
Pedis. Any idea about this root word, guys? To anyone, what is pedis? Pedis. खुशबू, you have? No. Pedis का मतलब है फूट, पैरों से रिलेटेड. पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन, यू ऑल हैव हर्ड दिस. चलने को बोलते हैं ना पेडेस्ट्रियन वॉक, या फिर पेडेस्ट्रियन वे कह सकते हो, पैदल चलने का रास्ता. द वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट इज डेमागॉग. डेम का मतलब होता है पॉपुलेशन. अब अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो डेमागॉग कौन होता है? डेमागॉग इज अ हीरो ऑफ वीक कम्युनिटी एंड ही इज सो इमोशनली अटैच विद द कम्युनिटी कि वो लोगों के डिसीजंस को चेंज करने की हिम्मत रखता है. जैसे भीमराव अंबेडकर जी, he was truly a demagogue. He was representing his depressed classes, the whole community, and he was so emotionally attached to the community कि आज भी अगर आपको इसका एक बार आपको एक व्यू लेना है ना, इतने सालों बाद भी जब भी अंबेडकर जी की जयंती होती है, उनका बर्थडे होता है, कुछ भी स्पेशल डे रिलेटेड टू हिम, people come on the road. The whole roads get blocked, traffic jams. आज भी उनका impact इतना ज़्यादा है कि he was so capable of changing the decisions of people of his own community. तो जब आप कहते हो ना किसी weak community का कोई नेता होता है या weak community का कोई leader होता है, that person is known as demagogue. और वो emotionally किसी का भी decision change करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं. तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो लीडर ऑफ वीक कम्युनिटी. ठीक है, ओके. डेमागॉग को आप समझिए, डेम इज द रूट वर्ड फॉर पॉपुलेशन, डेमोग्राफी सुना होगा आपने, एंड गॉग इज अगेन फॉर द लीडरशिप एंड द इमोशनल बिहेवियर. तो डेमागॉग वन हु आर लाइक लीडर्स ऑफ द वीक कम्युनिटी, दे रिप्रेजेंट देयर कम्युनिटी एट द अपर हैंड. और वो इतना रूटेड होते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ दैट दे हैव दिस स्ट्रेंथ टू चेंज द डिसीजन ऑफ देयर होल कम्युनिटी. तो अपोजिशन वाले थोड़ा सा इनसे डर के रहते हैं. लास्ट वर्ड ऑफ दिस फैमिली इज पेडागॉज. अब पेडागॉगी से बना है पेडागॉग. या दैट मीन्स अ टीचर, अ मेंटोर दैट हैज अमेजिंग पेडागॉजिकल स्किल. आप टीचर कह सकते हो. ओके, आई होप दैट्स फाइन टू यू. लास्ट इज जराज. जराज इज अगेन फॉर सिनाइल थिंग्स, जिसको आप बोल सकते हो सिल्वर सिटीजन काइंड ऑफ थिंग्स. 60+ वाले लोग सिल्वर सिटीजन कह सकते हो आप. Anyone has idea of geriatrics? What is geriatrics? नहीं आइडिया है? पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है. Anyone? Yes, related to elderly people. Very good. That's the power of root words. इन्होंने 2 महीने पहले पढ़ा है, but they remember this. Elderly people. अब elderly people मतलब नहीं है geriatric का मतलब. Geriatric का मतलब होता है the problems, the symptoms, problems of aging. Elderly people, that is known as geriatrics. Okay, so again I'll make you revise one time. Geras is a root word for again aging and the silver citizens, 60+ वाले जो चीज़ें होती हैं. Geriatric, the symptom or problems of people who are above 60. Pedagogue is a teacher who has great pedagogical skills. Demagogue is a representation of a weak community. It's a strong leader of weak community. Pedestal is all about straight related to foot or the वॉकिंग स्टाइल आप कह सकते हो. पेडागॉजी, द टीचिंग स्किल्स. ऑक्यूलर, रिलेटेड टू विजन. बाइनोक्यूलर्स आप सबने बचपन में बहुत यूज़ किया है. मोनोकल इज अ सिंगल आई लेंस. ओके. ऑप्टिशियन, रिलेटेड टू द लेंस. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वन हु डील्स विद द विजन एंड द एलिमेंट्स ऑफ आईज. साइकोटिक, अगेन रिलेटेड टू माइंड बिहेवियर. साइकोसिस, जहाँ पर यू बिलीव इन योर ओन डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस. Neuritis is the inflammation of nerves. Neurosis is a condition जहाँ पर you believe in a lot of fear and anxiety. Neurologist, one who deals with your brain and spinal cord. Cardiologist, one who deals with the heart and heart ailments. Orthopedist, one who deals with your whole skeleton system. Dermatitis, inflammation of skin. Pachyderm, thick skin. Taxidermist, who believes in taxidermy या फिर who prepares craft from animal skin. Taxidermy is the art of creating crafts from animal skin. Epidermis, outer skin. Upper skin जिसको कहते हैं. Hypodermic, under skin. Dermatologist, one who deals with skin, hair and nails. Pediatrician, one who deals with the child development from 0 to 12. Obstetrician, every obstetrician is a gynecologist as they deals with childbirth, but gynecologists are the ones who deals with the reproductive organs of women. This is how we have completed session number 4 and 5.
I hope that's clear to you guys. Keep revising the words. ठीक है? We'll see you in the next session. Thank you so much. Keep learning.